So far we have discussed simplex method when your initial basic feasible solution is already existing, है ना? Now there are the case where suppose artificial variable is not ये initial basic feasible solution not existing. That is the possibility. By initial basic feasible solution का मतलब क्या हुआ कि you have already identity matrix, है ना? लेकिन suppose if your problem have inequality of this type, suppose करिए is equal to 5 or suppose greater than equal to 7. Okay, now suppose this is your constants, ये constants है, तो here you will not getting your initial basic feasible solution, क्योंकि when you will write it into equations, what you will do, you will write it 2x1 plus 5x2 minus some select variable, surplus variable, suppose s1 or s2 is equal to 7. Here also you have to add some select variable plus s1, है ना? So here what you are doing, not select variable, यहाँ पर मैं select नहीं ऐड कर सकता क्योंकि ये तो already equality है ना? Select और surplus कब यूज करते हैं? When you have inequalities. So here to construct your identity matrix you have to add some new variables, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा अगर आप मैट्रिक्स पर आएंगे, देखिए 4 3, यहाँ क्या है 0 and 2 5 0 minus 1. So I am not getting identity matrix. So I have to add some artificial variables, some a2, suppose here some a1. These artificial variable will give you your identity matrix. Now what will happen? 4 3 and 0 1 0, and here you can have what, यहाँ पर a1 का कोएफिशिएंट है तो here I can have 1, है ना? यहाँ का इसको मैं -1 लिख दूं, मैं -1. So you have 0 1, एक यहाँ पर भी 0 होगा. वेरिएबल्स कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 3 और कितने हैं 4 5, तो एक 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर भी आएगा 0. ओके, सो ये 0 जो है ये, तो इन दिस केस यू कैन गेट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये आ गए 1 0 0 1. So when your inequalities are greater than equal to type or equal to type, then you have to use these artificial variables to get initial basic feasible solution. This is clear, है ना? Yes, तो sir. हाँ, तो ये आपके पास 2 methods है for dealing such type of problems where you have greater than equal to or equality type constants. So there are 2 methods. First method is two-phase method. Two-phase method. Two-phase method. इसमें हम 2 फेज पे काम करेंगे. पहले फर्स्ट फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करेंगे, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है व्हाट यू नो दे डोंट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, है ना? We are adding just to solve the system to get the initial basic feasible solution, because in simplex method we have a restriction, there must be starting initial basic feasible. तो उसके लिए we are adding these artificial variables. तो two phase method में first phase में we will remove these artificial variables क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है. In objective function they should be with zero value if they are, so we will try to remove this. तो टू फेज में प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं. फर्स्ट फेज में आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करेंगे, सेकंड फेज में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एंड सेकंड मेथड इज बिग एम मेथड. बिग एम मेथड और मेथड ऑफ पेनल्टीज भी कहते हैं, पेनल्टी मेथड. तो व्हेन वी यूज दीस टू मेथड्स, भाई कब यूज करेंगे इसे? जब हम सरप्लस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते. है
जब हम सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते इक्वेशन सॉल्व करने में। नहीं, सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल तो यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट वेरिएबल से तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। अगर सिलेक्ट होगा तब तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कॉलम दे ही देगा, है ना। इसका इस्तेमाल कब कर रहे हैं हम, जब व्हेन वी आर अनएबल टू गेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बात समझ में आई। जब हम यस सर। ग्रेटर इक्वल टू की प्रॉब्लम हमारे पास कांस्टेंट होगा एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि वी आर यूजिंग द सरप्लस वेरिएबल, तो सरप्लस वेरिएबल की वजह से वी विल बी नॉट गेटिंग IBFS, देन वी हैव टू यूज दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल। या कोई इक्वालिटी दे रखी हो, इक्वालिटी में कोएफिशिएंट इनके अगर 1 नहीं है, they are not behaving as a select or surplus variable, then so let us take, so firstly true phase method. I will take true phase method. उसकी छोटी सी एल्गोरिथम मैं लिख दे रहा हूँ आपको, फिर प्रॉब्लम में इसको आप देखेंगे तो प्रॉब्लम में यू विल गेट ऑल थिंग्स मोर क्लियर। एल्गोरिथम में फर्स्ट थिंग इज, step 1 is same, you will have to write all the problem into standard form. Write your LPP into standard form. Standard form means, standard form means what? Free from inequalities. Means all the equations should be in equalities, है ना। all the equation, all the constant should be equalities, equalities में होने चाहिए। तो equalities जो बनाने के लिए you will have to use select surplus variable. So first step is this. Now this one में two things are there. First में A, if there is already, if there is ready starting बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगर रेडी स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है ना, तो इट मींस यू हैव IBFS, तो डायरेक्ट गो टू फेज 2। हम डायरेक्ट फेज 2 पे चले जाएंगे। फेज 2 में लिखूंगा क्या है ना, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप बी है, इफ नॉट, अगर हमें IBFS नहीं मिल रहा है मींस यू आर नॉट गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ नॉट go to next step, go to the next step। नेक्स्ट स्टेप में आपको पहले फेज 1 से स्टार्ट करना होगा, ठीक। फेज 1 में योर फर्स्ट स्टेप, स्टेप 2 जो इसका पाएगा, ये स्टेप 1 तो ये था। स्टेप 2 मींस नाउ you have to add artificial variables, किस साइड में, टू द लेफ्ट साइड ऑफ ईच इक्वेशन, ऑफ ईच इक्वेशन। जो इक्वेशन तो हमने यहाँ बना लिया, अब उन इक्वेशन तो हम ये देखेंगे किस इक्वेशन में आपके पास क्या बेसिक मैट्रिक्स नहीं बन रही है। जैसे यहाँ पर नहीं बन रही है, माइनस आ रहा है तो यहाँ ऐड करूंगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ, वो हम प्रॉब्लम देख के समझ में आ जाएगा ना। तो ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ ईच इक्वेशन दैट डज नॉट फॉर्म बेसिस मैट्रिक्स, जो बेसिस मैट्रिक्स नहीं बना रहा। बेसिस मैट्रिक्स क्या होता है आपका, जब आप M क्रॉस M का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना, सब मैट्रिक्स which will be शुरू में initially which will be actually an identity matrix। ये आपका सेकंड हो गया। एंड देन इसी में कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आपका प्रॉब्लम में गिवन होगा, है ना, वो तो आपका मेन फेज 2 के लिए होगा। लेकिन हियर इन फेज 1 बिकॉज यू आर एडिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, तो नाउ यू आर फ्रेमिंग अ न्यू
equations. So for that I will construct an auxiliary objective, auxiliary मतलब supportive additional objective function. वो किस तरीके का होगा? मिनिमाइज ऑफ z, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं a1 a2 डिपेंड करेगा हाउ मेनी वी आर यूजिंग, इन सबको क्या करना? मिनिमाइज करना. ठीक है, ये एक हम आर्टिफिशियल ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे. मिनिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू a1 a2 an. ये a1 a2 an क्या है? दे आर द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स व्हिच वी हैव यूज्ड इन स्टेप 2. अब वो जितने भी होंगे 2 3 1 4 व्हाटएवर. ठीक, दैट मीन्स अब इसको अगर हमें सॉल्व करना होता है तो यू नो कि हम हमेशा मैक्सिमाइज, इसे मैक्स में लिखते हैं, तो इसे आई कैन राइट मैक्स ऑफ z स्टार इज इक्वल टू माइनस a1 माइनस से मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं, है ना. हियर ऑल ai ग्रेटर देन 0. ये आर्टिफिशियल वेरिएबल भी सारे नॉन नेगेटिव रहेंगे. ठीक है, ये स्टेप हमारा 2 हो गया. आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करा एंड कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइक दिस, where our objective is to minimize the values of these artificial variables. Now step 3, phase 1 में चलना है अभी. So now what will happen? आपके पास नई ये LPP में ये तो constants होंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होगा. ठीक है, नॉट द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन. फॉर दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड फॉर दीज constants which have select, surplus or artificial variables, I will start the simplex method now. Apply simplex method. Apply simplex method to the newly constructed LPP, है ना. जो अब हमने न्यूली में क्या हुआ है बस कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये न्यू आ गया है, बाकी ये चीज तो आपकी वही है, बस इसमें आर्टिफिशियल वैल्यूज आ गए. तो व्हेन यू विल अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड, वैसे ही जैसे अप्लाई करते रहे पीछे, फॉलोइंग दीज केसेस में अराइज, फॉलोइंग 3 केसेस में अराइज. फर्स्ट केस, when you are solving your maximum of z star, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैक्स लेके चलना है, इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 0 आ रही है, इट इज नेगेटिव, एंड at least one artificial variable is present in the basis with positive value. ओके, बेसिस क्या होता है? वही जो हम कॉलम बनाते हैं एक्स बी और वाई बी. तो जो एक्स बी में प्रेजेंट होंगे वेरिएबल वो आपके क्या कहलाते हैं? बेसिक वेरिएबल्स. तो अगर इट इज द केस के मैक्सिमम z स्टार तो लेस देन 0 है एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल इज द बेसिक वेरिएबल, बेसिस में अवेलेबल है विद पॉजिटिव वैल्यू, उसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव है. इन दिस केस द ओरिजिनल LPP हैज इनफीजिबल सॉल्यूशन. In this case, the original LPP has infeasible solution. ठीक है, इनफीजिबल सॉल्यूशन का केस होगा ये जब ये होगा. सेकेंड पॉसिबिलिटी, मैक्स ऑफ z स्टार इज इक्वल टू 0 आ जाए एंड एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल को मैं शॉर्ट में ए वी लिख दे रहा हूँ ना, क्योंकि इसका बार बार यूज करना है. ए वी I will be using several times here, and at least one artificial variable is present in the basis
in the basis with zero value, with zero value. Okay, z star भी zero है, यहाँ पर भी zero value है. Then we can proceed to phase 2. Then to get BFS, we may proceed to phase 2. We may proceed to phase 2. Phase 2. ओके, अगर ऐसा केस होता है कि मैक्सिमा जेड स्टार भी जीरो है, क्योंकि मैक्सिमा जेड स्टार जीरो का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम भी जीरो हो गई और आर्टिफिशियल वेरिएबल उनकी वैल्यूज भी जीरो आ गई, यानी कि दे हैव नाउ नो रूल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. यही हम चाहते थे, क्योंकि ये सिर्फ आर्टिफिशियल थे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो अगर ऐसा केस है तो हम डायरेक्ट फेज 2 पे जा सकते हैं. एक केस और पॉसिबल है, थर्ड, बैक जेड स्टार इज जीरो and no artificial variable is present. इसका माइक ऑन है भाई, म्यूट रखो माइक अपना. is present in the basis. एक केस ये भी हो सकता है कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है. In this case also you can go to phase 2. In this case a BFS, basic feasible solution to the original LPP has been found. ठीक है, इस केस में भी हमें ओरिजिनल BFS ऑफ द ओरिजिनल LPP मिल गया है. फेज 2 में चले जाएंगे डायरेक्ट. बस फेज 2 में एक स्टेप में आंसर आ जाएगा इस केस में. तो these three cases are there. Max z less than 0, artificial variable present with positive value. Max z star is 0, artificial variable present with 0 value. And max z star is 0, no artificial variable is present. ठीक, ये तीन केस आएंगे. यहाँ पर हम फेज 2 से फिर स्टार्ट करेंगे. नाउ फेज 2 में क्या करना है, फेज 2. ठीक है, तो फेज 2 में आपका स्टेप आएगा, इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप, नाउ consider the optimum basic feasible solution of phase 1 as a starting basic feasible solution for the original LPP. देखिए, जब आप फेज 1 में सिंप्लेक्स टेबल बना के सॉल्व करेंगे और जब लास्ट टेबल पे पहुंच जाएंगे, इनमें से कोई केस आएगा तो जो उसका लास्ट स्टेप होगा फेज 1 का, वो आपका ओरिजिनल LPP का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा. ओरिजिनल LPP का मतलब क्या हुआ कि नाउ यू विल हैव टू टेक द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो प्रॉब्लम का एग्जैक्टली आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ होगा प्रॉब्लम जब आप स्टार्ट करेंगे, है ना. अभी हमने क्या किया है, फेज 1 में जो सॉल्व किया है इस प्रॉब्लम को बाय टेकिंग दिस ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो इस ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए यू विल डू ऑल दीज थिंग्स अप टू स्टेप 3. फिर फेज 2 में जाने के लिए जो स्टेप 3 का आपके पास सिंप्लेक्स टेबल बनी हुई होगी, वो जो लास्ट आइटेशन होगा वो फेज 2 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइटेशन. लेकिन उसमें ओरिजिनल LPP कंसीडर करेंगे. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लेंगे आप, ओरिजिनल लेंगे. तो जब ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे तो क्या होगा, आपका सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, जो कॉस्ट वैल्यूज है CJ, है ना. अब ये CJ आपकी क्या आ जाएंगे ये ओरिजिनल की आएंगी बस यहाँ पर, है ना. क्योंकि यहाँ पर CJ आपके पास क्या थे, इसके थे CJ. तो अगर आप देखें यहाँ पर CJ में किससे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट जो है -1 है, बाकी x1 x2 के क्या थे, 0 थे. लेकिन जब आप फेज 2 में जाएंगे तो यहाँ पर x1 x2 के जो कोएफिशिएंट्स होंगे, कॉस्ट वैल्यू जिसे कहते हैं, वो क्या होंगी, वो 0 नहीं होंगी. वो होंगी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन होंगी. यहाँ पर हम वो वैल्यू रख देंगे सिंप्लेक्स टेबल जो आपकी फेज 1 की लास्ट है ना. अभी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा. तो वही हम लिख रहे हैं, एज ए स्टार्टिंग BFS फॉर द ओरिजिनल LPP assigned actual coefficients
assign actual coefficients to the variables in the objective function and a value 0 and a value 0 to the artificial variable that appears, अगर कोई appear होता है लास्ट टेबल में, that appears at 0 value in the final simplex table. of phase 1. ठीक है, अब ये जो आपके पास टेबल बन जाएगी, इस पे आप सिंप्लेक्स मेथड करेंगे और सॉल्व करेंगे. नाउ अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड टू द न्यू सिंप्लेक्स टेबल, है ना, टू द मॉडिफाइड सिंप्लेक्स टेबल. मॉडिफाइड कौन सी है? जो हमने ये सब वैल्यू पुट कर दिया फेज 2 की, टू द मॉडिफाइड सिंप्लेक्स टेबल and solve to get an optimum solution of the original LPP. यहाँ से हम सिंप्लेक्स टेबल वैसे ही सॉल्व करेंगे, डेल्टा जे निकाल के और फिर आगे बढ़ेंगे. ये आपका इसका एल्गोरिथम रहेगा. ठीक है भाई, अब मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ. प्रॉब्लम नंबर ये लेते हैं, इसमें पूरा मेथड एक्सप्लेन. 425 प्रॉब्लम आई एम टेकिंग. ठीक है भाई, स्टूडेंट्स आर देयर? Yes, sir. यस चलो. सर. यस सर. अब ये थ्योरी अभी आपकी पूरी समझ में आ जाएगी जब मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा. सारे स्टेप्स वहां पे क्लियर होंगे. अगर कोई किसी भी स्टेप में अगर थोड़ा सा डाउट है तो आई एम टेकिंग प्रॉब्लम नंबर 425 पेज 109. देखो, आई एम टेकिंग प्रॉब्लम फ्रॉम दिस बुक. आप कोई प्रॉब्लम कहीं से उठा के सॉल्व कर सकते हैं. मेथड लगाइए और प्रॉब्लम सॉल्व करके यू कैन अप्लाई दिस मेथड्स. यूज टू फेस मेथड. प्रॉब्लम में अगर लिखा हुआ है टू फेस मेथड तो ये यूज करेंगे. अगर नहीं लिखा हुआ है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो प्रॉब्लम है इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज हो रहा है. तो वहां पर आप या तो बिग एम मेथड लगाएंगे या टू फेस. अगर टू फेस लिख दिया है तो टू फेस लगाएंगे, नहीं लिखा है तो आपकी चॉइस होगी. आप बिग एम भी लगा सकते हैं, जो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा नेक्स्ट उसमें, वह टू फेस लगा सकते हैं. टू फेस मेथड थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि हम टू फेस में सॉल्व करते हैं. बिग एम इसके मुकाबले थोड़ा सा ईजी है, कम लेंथी है. I am taking three variables problem, three key decision variables, subject to the constraints 2x1 plus x2 minus 6x3 is equal to 20, 6x1 plus 5x2 plus 10x3 less than equal to 76, 8x1 minus 3x2 plus 6x3 less than equal to 50. ये है प्रॉब्लम. पहले तो बताओ भाई, इस प्रॉब्लम को हम क्या करें? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? राइटिंग इट स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हियर यू कैन सी ये टू स्टैंडर्ड में नहीं है ना. तो यहाँ पर आई विल हैव टू यूज सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल्स. इसको आई कैन राइट यही. तो फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. दिस कैन बी रिटन एज 2x1 plus x2 minus 6x3 is equal to 20. Here 6x1 plus 5x2 plus 10x3 and I will use select variables. यहाँ पे मैं select surplus को s1 s2 से कह देता हूँ, अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप y1 y2 ले लेते. select variable है तो s1 select variable is equal to 76 and 8x1 minus यहाँ पर 3x2 है, सॉरी x2 है, माइनस 3x2 प्लस 6x3 प्लस, और न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका विल बिकम
max of z 5x1 minus 4x2 plus 3xt plus 0s1 plus 0s2. अब ये बताइए कि क्या here are you ready to get initial basic feasible solution? इसको हमने ये लिख दिया बोलिए। तो here you have है ना सॉल्यूशन में ये आपका ये स्टेप यहाँ था, ये स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए now you have one how many variables 1 2 3 4 5 variables है, लेकिन if you will construct a table, चलो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखे you can see here easily in matrix form you have 2 1 minus 1, अब s1 s2 यहाँ आ रहे हैं तो ऊपर क्या है यहाँ पे यानी कि 0 0, then 6 5 10, s1 is 1 0 8 minus 3 6 0 1, ओके ये आ रहा है आपके पास। एक और स्टैंड ओके सो यू गॉट सर फर्स्ट रो में 2 1 minus 6 होगा ना? हाँ 2 1 minus 6 okay, but here if you see you are not getting the identity matrix। अगर आप देखें you have 2 है ना, but I am unable to get the initial basic feasible solution। here what you will do, identity matrix नहीं आ रही ना यहाँ पे पास, तो what यहाँ पर अगर हम यहाँ 6 से डिवाइड किसी को बनाएंगे तो यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट सबके 1 नहीं है। ऐसे कल एक लास्ट क्लास में प्रॉब्लम बताई थी कि अगर यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू 0 हो तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज एक वेरिएबल को एज ए सिलेक्ट या सरप्लस यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो हेयर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर द starting basic matrix, for the starting basis matrix, so what I have to do, I have to add one column। कौन सा देखो ऐड करना पड़ेगा हमें 1 0 0 है ना, इसमें अगर मैं 1 0 0 ऐड कर दूं एक कॉलम 1 0 0, मान लो यहाँ ऐड कर दे 1 0 0 या कहीं भी ऐड कर दे अगर हम, तो ये जो आप न्यू बनाएंगे अब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। प्रॉब्लम भी आपकी सही हो जाएगी। n is 6 m is 3, तो यू कैन गेट 3/3, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स जो होती है वो सब मैट्रिक्स क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बॉर्डर कितने ऑर्डर की होती है m क्रॉस m है ना। तो हेयर आई हैव टू ऐड वन आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो ये यहाँ पर 1 कब आएगा, व्हेन आई विल बी एडिंग वन आर्टिफिशियल वेरिएबल हेयर प्लस a1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखो इक्वालिटी थी। तो हियर आई डोंट नीड एनी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, बट बिकॉज टू गेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आई हैव टू ऐड सम वेरिएबल हुज कोएफिशिएंट इज 1, तो वो क्या होगा, वो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा। ओके नाउ यू कैन सी इजीली, so now you got identity matrix, now your initial basic feasible solution is what, 3 वेरिएबल्स को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, a1 is 20, s1 is 76, x2 is 50। ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ओके बताइए, तो यहाँ पर हमें सरप्लस वेरिएबल ऐड नहीं करना पड़ा, लेकिन स्टिल वी नीड आर्टिफिशियल, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट वी वर अनेबल टू गेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है हाँ, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। इज इट क्लियर नाउ, है ना। So here we have to add one artificial variable because the identity matrix was not there for the starting basis matrix, है ना। तो वो हमने यहाँ इक्वालिटी में ऐड कर दिया, इजीली देख सकते हैं। अभी आपके पास ये यहाँ ऐड करा 1, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पर भी 0 है।
So now I got the initial basic feasible solution, which is this. Now I will go to phase 1. So now I will start with phase 1. So phase 1 में, as I told you, firstly I will construct the auxiliary objective function. So the auxiliary objective function is, तो क्या होगा, मैक्स ऑफ z स्टार, डायरेक्ट अगर मैक्स पे लिख दिया तो माइनस a1 है ना, क्योंकि एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है. ओके, और आप नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट द सिंपलेक्स टेबल फॉर दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसके लिए सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं. तो all the values will be same, only objective function I will use this. So you know cb क्या वैल्यूज थी बताइए, yb बेसिस xb इनकी वैल्यूज एंड ऑल द वेरिएबल्स. तो क्या थे, x1 x2 x3 s1 s2 a1. ठीक है, ये आपके पास 6 होगा. हियर आई विल टेक द मिनिमम रेशियो. सिंपलेक्स टेबल वैसी रहेगी बिल्कुल सिर्फ. Firstly, I will construct for this objective function. Okay. Yes, sir. चलो तो प्रोसीड करते हैं. अब CB XB में I will write all the basic variables. तो basic variables क्या क्या है, S1 क्या थे भाई, S1 S2 A1 थे ना. या पहले मैंने A1 Yes. लिखा हुआ है तो पहले A1 लिख दो आप, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन वही हुई है, फिर चेंज करना पड़ेगा. किसी को भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले मैं A1 लिख दे रहा हूँ. तो A1, क्योंकि A1 पहले आ रहा है आपका फर्स्ट में, S1 S2 इस तरीके से आ रहा है. A1 की वैल्यू इज 20, इट्स वैल्यू इज 76, इट्स वैल्यू इज 50. अब यहाँ पर देखो जो हमें लिखना है ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन न्यू वाला लिखना है, ध्यान रखना. पुराने इस वाले से वैल्यू मत लिखिएगा. यहाँ पर तो सबकी वैल्यू 0 है ना. यहाँ पर तो क्या है, +0 A1. 0 0 लेकिन आई विल सॉल्व फर्स्टली फेज 1 में ऑक्सिलरी के लिए, तो इसका कोएफिशिएंट -1 है, 0 0 है ना. ये स्टेप ध्यान रखना. सिमिलरली यहाँ CJ भी यू हैव 0 0 0 0 0 -1. इनकी वैल्यू शूट आगे रख दी सब. 2 1 -6 0 0 1 6 5 10 1 0 0 and 8 -3 6 0 1 0. अब बिल्कुल सेम प्रोसेस सिंप्लेक्स का आपका रहेगा. यू विल फाइंड योर डेल्टा जे. डेल्टा जे आपको पता क्या होता है, CB YJ माइनस CJ है ना. डेल्टा 1 निकालूंगा तो -1 × -2 -2 आएगा. ये सब 0 है तो कितना जाएगा, -2 -1, ये सब 0 तो -1 6 0 0 0 ये आ जाएगा. चेक कर सकते हैं आप. अब यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव, दिस इज मोस्ट नेगेटिव, सो दिस विल बी एंटरिंग. मिनिमम रेशियो निकालेंगे 20/2, इट इज 10 है ना. इनका XB/X1 76/6 12.6 आ रहा है, एंड 50/8 इट इज कमिंग 6.25. सो इट इज द मिनिमम. So this will be leaving. बाहर एरो का मतलब लीविंग, इट इज एंटरिंग. तो S2 जाएगा, A1 एंटर करेगा. तो इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, आई एम एक्सटेंडिंग इट. अब पाइवट एलिमेंट, विच इज योर पाइवट एलिमेंट, दिस इज योर पाइवट एलिमेंट. इट मस्ट बी 1. तो पहले हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे. तो A1 S1 और S2 के प्लेस पे X1, यहाँ X1 आ गया है ना. नेक्स्ट स्टेप, इसे डिवाइड करके इसकी वैल्यू रख देंगे आप. तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी हाउ मच, देखो इनकी वैल्यू लिख दी है पहले. A1 की तो -1 है, 0 0. इस पूरे रो को 8 से डिवाइड करूंगा मैं, थर्ड रो को. तो 50/8 यानी कि 25/4 लिख सकते हैं. 1 -3/8 देन इट इज 3/4 हो जाएगा. 0/8 इज 0, 1/8 एंड 0/8 इज 0. ओके, ये आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, करस्पॉन्डिंग टू दिस, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम में 0 चाहिए. तो ये 6 है, ये न्यू है. तो व्हाट आई विल डू, 6 टाइम्स माइनस दिस,
R2 में R2 माइनस 6 टाइम्स R3 स्टार 6 R3 स्टार लिख दिया, ये R3 स्टार होता है, ये 0 होना चाहिए हमारा। तो इसमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसकी कैलकुलेशन में लिख रहा हूँ डायरेक्ट 77, ये तो 0 आ जाएगा, 77/2, 29/4, 11/2, 1 माइनस 3/4 एंड दिस विल बी 0। यहाँ पर 2 है तो ट्वाइस माइनस करेंगे आप, R1 माइनस ट्वाइस R3 स्टार, ये R3 स्टार है, सो इट विल बी 15/2, ये 0, 7/4 माइनस 15/2, 0 minus 1/4 and 1. Now I will find my delta J, फिर से है ना, इसे हटाओ, डेल्टा J। सो डेल्टा J, देखो डेल्टा J हम वैसे उसी फॉर्मूले से निकालेंगे बिल्कुल सेम, CB -1 into 0 and minus this, तो ये आपका डेल्टा J फर्स्ट विल बी 0, ये 0 आएगा, x1 यहाँ पर है वैसे भी, तो बेसिक के करस्पॉन्डिंग 0 आता है हमेशा, है ना। इट विल बी -7/4, 15/2, 0, 1/4, 0, अभी भी नेगेटिव है, तो अगेन आई हैव टू यूज दिस, बट इट इज द ओनली नेगेटिव, तो यही एंट्रिंग वेरिएबल हो गया, x2 विल बी एंट्रिंग, है ना। और लीविंग मिनिमम रेशियो निकालेंगे, तो 15/2 अपॉन 7/4 अपॉन 7/4, it is coming 4 point something, then 77/2 upon 29/4, it is coming 5 point something, और यहाँ पे ये माइनस है तो इसे आई विल नॉट कंसीडर, है ना, माइनस को हम नहीं कंसीडर करते हैं, तो ये 4 point something इट इज लीविंग, ये आपका मिनिमम रेशियो है लीविंग, सो 7/4 दिस, इट इज द की एलिमेंट। फिर टाइम कम है, कल कंटिन्यू करूँ इस प्रॉब्लम को, फिर मैं आगे, ओके सर। ओके सर। चलो कल कंटिन्यू करेंगे इसी प्रॉब्लम को लेके, इसके आगे से टेबल बनाते हैं ना, ये टाइम लैप्स है नहीं है। चलिए नेक्स्ट टेबल बनाएंगे फिर कल। सिर्फ कैलकुलेशन है सर। हाँ कैलकुलेशन ही है इसमें, बस मेथड समझ में आ जाए आपके, बस तो कैलकुलेशन करनी है। चलिए कल कंटिन्यू करूंगा इसको।